لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين ويعصب الدين أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين على لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لهم الخيرة. تمام تعریفیں اسے اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا تاکہ دین قائم کرے اور لوگوں کو راہ نجات دکھا سکے اور تمام لوگ جنت کی طرف آمادہ ہو سکے، دوزخ سے دور ہٹ سکے. وہ پروردگار عالم امام معصوم علیہ السلام کو بھی خلق کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کا سجدہ کرتے ہیں، ایسی ہستیاں اس کا سجدہ کرتے ہیں، تو وہ کون ہوگا جس کا سجدہ ہم کرتے ہیں؟ وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے ما کان لہم الخیرت. انتخاب کا حق انسان کو نہیں ہے، چننے کا حق، استفاء مصطفیٰ کرنے کا حق، ہدایت کی ذمہ داری کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی کیا تو مشرک ہوگا، منافق ہوگا، کافر ہوگا، وہ واصل جہنم ہوگا. لہذا پروردگار فرماتا ہے انتخاب کا حق صرف میرا ہے. اگر کوئی بڑھ کے آگے لے لیا تو میرا حاجی کہے گا، میرا امام کہے گا، میرا رسول کہنے کا دعویٰ کرے گا تو واصل جہنم ہوگا، کافر ہوگا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک آیت نازل کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ انتخاب کون کرے گا، کس کا کرے گا، کیسے ہوں گے کرنے والے، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا کمال کیا ہوگا، ان کا فضیلت کیا ہوگی. جب واطیع اللہ واطیع الرسول اولی الامر منکم کی آیت نازل ہوئی تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو راوی حدیث قصہ ہے، اس وجہ سے راوی حدیث قصہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جانتی ہیں کہ جناب جابر بن عبداللہ 5ویں امام علیہ السلام کی زندگی تک زندہ رہے گے، لہذا ان کو اس کی روایت کا حق دی جائے تو 5ویں امام تک یہ ہدایت کرتے رہیں گے کہ حدیث قصہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی کمال کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کے معجزات کیا ہے، وہ دعاؤں کو کیسے قبول کراتا ہے. یہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں جو حدیث قصہ میں. اس وجہ سے جناب سیدۃ نساء العالمین نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے. وہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کے صحابی آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ واطیع اللہ واطیع الرسول اولی الامر منکم کی تشریح کیجیے، آیت کی تشریح کیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، میری اطاعت ہے اور صاحبان امر کی اطاعت ہے. صاحبان امر کون ہے؟ جابر نے پوچھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے جابر، صاحبان امر سے مراد مالائے کائنات سے لے کر 12ویں آن تک کا سلسلہ بتاتے ہیں اور اس میں ایک ایک کے فضائل، مناقب، کمالات، جوہرات اور کردار، تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے فضیلتیں بتاتے ہیں. جب 5ویں امام کا سلسلہ آیا جس کے سلسلے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار اس مجلس کو جس نے سجایا ہے، اس محفل کو، اس مجلس کو، لوگوں کو، تمام کو جو سنانے کے لیے آمادہ ہوئے، ان تمام کے دلی مرادوں کو بدلا، ان کے بیشتران کے گناہ کبیرہ صغیر حمد معاف فرما، ہمارے ہر نیکیوں کو قبول فرما، جو سنتے ہیں ان تمام کے دلی حوائجوں کو بدلا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اے جابر،
جب 5ویں عام کا سلسلہ آیا تو رک کے کہتے ہیں اے جابر تم یہ 5ویں عام میرے نواسے محمد باقر علیہ السلام کی حیات تک تم زندہ رہو گے، ان سے کہنا میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ ہم جو سلام کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آدمیوں کو سلام کرنا بھی ان کی سنت ہے، امام معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنا سلام کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، لہذا ہم اہل سنت ہیں۔ لہذا رسول فرماتے ہیں میرے نواسے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہاں سے جناب جابر بن عبداللہ دیوانے کے معنی یا باخر یا باخر یا باخر بول کے پھرتے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے دیوانہ ہو گیا، باخر کون ہے، آخر باخر کون ہے؟ کیونکہ یہ زمانے رسول خدا میں رہے، زمانے مولا کائنات میں رہے، زمانے امام حسن مجتبی علیہ السلام میں رہے، زمانے امام حسین علیہ السلام میں رہے، زمانے سید سجاد میں رہے، اور باخر علوم کے زمانے تک آ رہے ہیں، مگر باخر نام 5ویں ہادی کا 5ویں رہنما کا ہے، مگر یہ پکارتے ہیں اسی وقت سے یا باخر یا باخر یا باخر۔ دو لوگ سمجھنے لگے کون باخر کے بارے میں کہہ رہا ہے جو دیوانہ ہو گیا ہے، نہیں جابر کو بھی دنیا دیوانہ سمجھنے لگی۔ جب یہ 5ویں ماہ یکم رجب کو ظہور ہوئے جو 57 ہجری تھی اور 114 ہجری میں شہید ہوئے 7 ذی الحج کو، یعنی 57 سال زندہ رہے۔ ان کا یہ اعزاز ہے، پروردگار عالم ان کو اعزاز بخشا ہے کہ ان کی حیات بھی 57 سال، ان کی ولادت کا سن بھی 57 سال۔ اس سے مراد پوچھا جاتا ہے کہ علم و جفر، علم کمال، علم منطق لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ آخر 57 میں کیا مراد ہے، تو کہا جاتا ہے کہ 57 میں 5 اور 7 ہے، 5ویں امام ہے، 7ویں معصوم ہے، لہذا پروردگار عالم نے ان کو 57 سال میں ظہور کیا اور 57 سال کے سن میں شہید شہادت کا درجہ حاصل کیے ہیں۔ لہذا یہ محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں محمد باقر علیہ السلام کے والد بزرگاں کا نام جناب علی بن حسین سید السالین علیہ السلام ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت الحسن ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے کنیت ابو جعفر ہیں، کیونکہ جعفر صادق علیہ السلام کے باپ ہیں لہذا ابو جعفر ہے۔ ان کے القاب 4 ہیں، شاکر، ہادی، امین، لہذا اس طریقے کے مولا کے لقب ہے کہ ہادی، امین، شاکر، یہ لقب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے ہیں۔ ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے علم کو ضروری کر دیا ہے۔ علم و عصمت کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ علم و حکمت ہونا ضروری ہے، علم و عصمت ہونا ضروری ہے۔ اگر علم و عصمت نہیں ہوتی تو صرف عصمت کافی ہوتی، عمل کافی ہوتا تو ملائکہ کم نہیں تھے پروردگار عالم کو، جو سجدہ کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو خود کرتے ہیں، جو قنوت کرتے ہیں، مگر پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ اے ملائکہ و فرشتوں، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی ہادی ہوتا ہے۔ عصمت کے ساتھ ساتھ علم ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی فرشتے اور ملائکہ بھی معصوم تھے، مگر علم کی ضرورت بتانا چاہتا ہے پروردگار، اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کا علم دے کے ملائکوں اور فرشتوں سے افضل قرار دے کے ان کا سجدہ کریا، ان کا سجدہ کرا کے بتا رہا ہے جس کے پاس علم ہوگا وہی قابل تعظیم و تسلیم ہے۔ علم کے بغیر کتنا بھی کردار، کتنا بھی کمال، کتنی بھی فضیلت ہو، وہ مکمل منزل تک نہیں جا سکتے۔ لہذا جب جناب سلیمان علیہ السلام پیغمبر کے وسیع آصف بن برقیہ کے پاس یعنی 70 باب میں ایک باب کا علم تھا، تو تخت بلقیس کو اٹھا لائیں، یعنی چشمہ زدن میں تخت بلقیس کو آصف بن برقیہ اٹھا لائے جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ یہاں مولا کائنات کو کل شیء احصیناہ فی امام 70 کے 70 باب پروردگار عالم نے اماموں کو مولا کائنات سے لے کر امام مہدی علیہ السلام دے کے بتاتا ہے۔ ایک باپ سے اتنا اعزاز ہے تو 70 باپ کے ساتھ علم جس کے پاس ہوگا ان کے پاس کیا فضیلتیں ہوں گی، کیا کمالات ہوں گے، کیا کردار ہوگا،
उनका क्या शान और शुजात, वो सब्र, वो तहम्मुल, वो तक़वा, परहेज़गारी, इबादत, तहारत, जलालत, हिदायत कैसी होगी उनकी। ये हमें सोचना चाहिए कि हिदायत देने वाला हादी ऐसा है तो हिदायत लेने वाला बगैर नफ्स के देख के सर को सजदे में रख देगा, उनके पैरों पर तस्लीम का सजदा करने के लिए आमादा हो जाएगा। इस वजह कुरान फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना ला तालमून, जो जानता है और जो नहीं जानता दोनों एक बराबर के नहीं हो सकते। लिहाजा इनका मर्तबा अलग है, इनका मर्तबा अलग है। मौला से पूछा गया मौला आपको गम किस बात से ज़्यादा है, तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे गम इस बात का है कि मुझे उन तीनों से मिलाते हैं जो 40 साल के बाद ज़ाहिरी तरीके से कुछ मकसद के लिए ईमान लाए। मैं 3 दिन का था, 4 किताबें पढ़ के लोगों में सुनाया, मुझे और उनसे नहीं, ये मुझे राज़ी नहीं है। लिहाजा सोचना चाहिए इस्लाम क्या कह रहा है, अइम्मा क्या कह रहे हैं, उनकी इताअत कैसे करना चाहिए, अल्लाह की इताअत कैसी है, रसूल की इताअत कैसी है, साहिबान अमर की इताअत कैसे है। लिहाजा आतिउल्लाह जाबिर से ये कह जाबिर बाखर 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 बोल के यानी सहराओं में निकलने लगे और खुश्कियों में निकलने लगे ढूंढते हुए बाखर कब आएगा, मेरा 5वां रहबर कब आएगा। जब इमाम अलैहिस्सलाम मिले तो जाबिर अलैहिस्सलाम पहचान नहीं सके, तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाबिर मैं ही 5वां रसूल का वसी व जानशीन हूँ, 7वां मासूम हूँ। जाबिर एक मरतबा तस्लीम के लिए पाँव पे गिर गए, गिरने के बाद उठते नहीं हैं, उठा मौला ने उठाया, मौला के चेहरे को देखते ही रह गए। तो मौला ने कहा मुस्कुरा के अरे जाबिर क्या मेरे जद्दे अमजद की सलाम मुझे नहीं पहुँचाओगे। जाबिर ने घबराहट से मौला इमाम बाखर अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया। तो इमाम अलैहिस्सलाम जाबिर से कहते हैं जाबिर तुम रसूल के ज़माने में थे, मौला कायनात के ज़माने में थे, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, मेरे वालिद सैयद साजिदीन के ज़माने में थे, और मेरे ज़माने में भी है। आप मंजिल ईमान आपके यहाँ कैसा है, ईमान की मंजिल क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो जाबिर ने कहा मौला नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना मा ला तालमून, आप जानते हैं मैं नहीं जानता, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मौला ने इसरार किया मगर जाबिर ने इनकार किया, मगर मौला ने फिर कहा तो जाबिर ने कहा मैं 3 चीज़ों को 3 चीज़ों से बेहतर तरजीह देता हूँ। जाबिर कहिए क्या 3 चीज़ें हैं आपके पास, हालांकि मौला जानते हैं, फिर पूछते हैं लोगों को बताने के लिए। जाबिर कहते हैं गुर्बत को दौलत से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि गुर्बत में इंसान अल्लाह को याद करता है, दौलत आने के बाद मजबूर हो जाता है दुनिया के कामों में, दौलत जमाने के लिए और दौलत कमाने के लिए हिर्स और लालच बन जाता है, इस वजह से अल्लाह याद नहीं आता। इस वजह से मैं दौलत से गुर्बत को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। फिर जाबिर फरमाते हैं मेरा दूसरा बयान यह है कि ज़ईफ़ी को जवानी से बेहतर समझता हूँ, तरजीह देता हूँ, इस वजह से कि ज़ईफ़ी में अल्लाह याद आता है, खौफ खुदा याद आता है, मौत याद आती है, जवानी में मौत नहीं याद आती, जवानी में ऐशो आराम का सीन होता है, लिहाजा इंसान भटकते हुए फिरता है। लिहाजा जवानी से ज़ईफ़ी को मैं तरजीह देता हूँ, ज़ईफ़ी को बेहतर समझता हूँ। फिर जाबिर फरमाते हैं मैं मर्ज़ को सेहत के ऊपर तरजीह देता हूँ, क्योंकि इंसान सेहत में अल्लाह को भूल जाता है। जब मर्ज़ वाक़ होती है, बीमार हो जाता है, तो अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करता है। लिहाजा मर्ज़ को तरजीह देता हूँ मैं सेहत के ऊपर। मौला ने मुस्कुरा के कहा जाबिर इतना ही सीखा था तुमने ये 6 मासूमों से यहाँ? तो फिर कहा हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना मा ला तालमून, मौला मैं पहले ही कहा था कि जानने वाले अलग है, मैं नहीं जानता। तो मौला ने कहा नहीं, जितना सीखना चाहिए था तुम उतना नहीं सीखे जाबिर। ऐसा नहीं है कि इंसान दौलत देने पर यहां मैं का नारा छोड़ दो जाबिर, तू का नारा बुलंद करो, तू ही तू है। जब दौलत दिया परवरदिगार आलम ने, परवरदिगार तू ही दिया है, तेरी ही राह में खर्च करूंगा, जैसा मोहसिन इस्लाम जनाब खदीजा कुबरा जनाब इमरान अबू तालिब अस्सलाम ने राह खुदा में खर्च करो, वैसा खर्च करूंगा माबूद, तेरा शुक्र है। जब जवानी आई तो परवरदिगार मुझे जवानी में इतना काम तेरे
حق کے تیرے دین کے لیے کرنے کے لیے مجھے قوت دیا ہے، تیرا شکر ہے، تو ہی تو ہے، کیونکہ میں ضعیفی میں اتنا کام نہیں کر سکتا، اتنی خدمت تیرے اسلام کی نہیں کر سکتا۔ جابر یہ بھی سنو، صحت کو غنیمت جانو، کیونکہ جب پروردگار صحت دیا ہے تو سجدہ کرو، معبود تو ہی تو ہے، تیرے ہی صدقے سے مجھے صحت عنایت ہوئی ہے، مرض میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہذا اللہ تو یاد آتا ہے، مگر یہاں پہ اللہ کو یاد کرنا کئی گنا 70 گنا زیادہ ہے۔ دولت میں اللہ کو یاد کرنا 70 گنا زیادہ ہے، صحت میں اللہ کو یاد کرنا 70 گنا زیادہ ہے، جوانی میں اللہ کو یاد کرنا ضعیفی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ جابر یہ ہے پروردگار کی فضیلت، پروردگار کے کمالات۔ جابر آج سے میں کہنا چھوڑ دو، تو کہنا شروع کرو۔ مولا کائنات منطقانہ انداز سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں، امام نے ایسے واقعات دیکھیں اپنے 57 سال کے سن میں کہ متعدد بادشاہوں دیکھے مولا امام باقر علیہ السلام نے، یعنی 57 ہجری میں امام کا ظہور ہوا، اس وقت معاویہ بادشاہ تھا، معلوم 60 ہجری تک معاویہ تخت خلافت تھا، 60 ہجری رجب کے مہینے میں معاویہ دنیا سے چلے گیا، واسطہ جہنم ہوا، تو اس کے بعد یزید تخت نشین حاصل کیا۔ یزید 60 ہجری سے 64 ہجری تک یزید تھا 3.5 یا 4 سال تخت حکومت پر، اور یزید کے بعد مولا امام محمد باقر علیہ السلام اس مروان کا دور بھی دیکھا، کیونکہ یزید کے بیٹا معاویہ کو تخت دینے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو مروان کو 10 مہینوں کے لیے دیا گیا تخت، وہ عرصہ بھی مولا محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا۔ اور 65 ہجری سے یعنی 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان کا بیٹا عبد الملک بادشاہ تھا، اس کا تخت خلافت بھی مولا امام باقر علیہ السلام نے دیکھا۔ اس کے دور میں ہی جب روم کا بادشاہ نے کرنسی دینا چھوڑ دیا، پیسہ دینا چھوڑ دیا، اور یہ خبر دی کہ عبد الملک بن مروان اگر تم عیسیٰ علیہ السلام پہ عقیدہ رکھتے ہو تو میں کرنسی سپلائی کروں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ عبد الملک بن مروان گھبرا گیا، مشورہ کیا، کوئی بھی صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکے، پھر مجبوراً ہو کے 5 کو بلایا گیا۔ محمد باقر علیہ السلام آ کے کہتے ہیں، عبد الملک بن مروان کیوں گھبراتا ہے، تو اپنا ایک سکہ رائج کر دے۔ تو عبد الملک نے خوش ہوا، مولا بتائیے کیسا سکہ رائج کروں، ایک طرف لا الہ الا اللہ کا نقش کر دے، ایک طرف محمد رسول اللہ کا نقش کر دے۔ یہ مولا کائنات نے سکہ اسلامیہ جاری کیا 5ویں امام اسلام نے ان کے دور میں۔ عبد الملک بادشاہ تھا تو ایک مردہ خوش ہو گیا، پیروں پہ گر گیا۔ افسوس ہے مسلمانوں کے، آج ان کے سکے پہ دنیا چلاتے ہیں، مگر جو سکہ رائج کی ہے، قائم کی ہے، ان کا اوپر ایمان نہیں لاتے۔ افسوس ہے ان کے اوپر، ان کی آنکھوں پر، دماغ پر، دلوں پر پروردگار عالم نے پردہ ڈال دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا ابصارہم ولا سمعہم، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ، ولا قلوبہم، ختم اللہ، ختم کر دیا پروردگار عالم نے، مہر کر دی ہے دیکھ کے کہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ باتیں نہیں سنیں گے، یہ اپنے دل سے نہیں مانیں گے۔ پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے امام، کون ہے امام؟ امام وہ ہے جو تمام کے مرادوں کو بدلائے، اسے امام وقت کہتے ہیں۔ وہ امام عبد الملک کے مشکل کو آسان کر دیے۔ عبد الملک کا دور دیکھا مولا کائنات نے، یعنی مولا وقت کے کائنات نے، جو باخر العلوم ہیں، یعنی 65 ہجری سے 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان تھا، اور 86 ہجری سے 96 ہجری تک ولید بن عبد الملک تھا، جو امام سید سراج الدین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ معلوم ولید ابن عبد الملک جو امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اس کا دور بھی دیکھا۔ 96 سے 99 ہجری تک سلیمان بن عبد الملک کے 5 بیٹے تھے،
लिहाजा ज़्यादा उन्होंने तख्त खिलाफत पर बैठे रहे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक 96 से 99 तक उसका दौर देखा और 99 से 101 हिजरी तक मारवान का पोता उमर इब्न अब्दुल अजीज, यानी मारवान को दो बेटे थे, अब्दुल मलिक, अब्दुल अजीज। अब्दुल मलिक के खिलाफत में उसके बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज को, जो मारवान का पोता है, उनको 2 साल के लिए भी खिलाफत दी गई। फिर 101 हिजरी से 105 हिजरी तक यजीद बिन अब्दुल मलिक, जो चौथा बेटा था अब्दुल मलिक का, उन्होंने तख्त खिलाफत पर बैठ गया। और उसके बाद 105 हिजरी से 125 हिजरी तक हश्शाम बिन अब्दुल मलिक, जो अब्दुल मलिक का 5वां बेटा था, वो तख्त खिलाफत पर बैठ गया। इसी दौर में मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम को जहर, यानी जीन में जहर भर के जीन के ऊपर बिठाया गया, सवारी के ऊपर जीन रखा गया, जीन के ऊपर बिठाया गया, मौला ने शहीद किया, मौला को शहीद कर दिया गया। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक मौलवी इसके ज़माने में, इसका ही यानी इसका दौर 105 हिजरी से लेकर 125 हिजरी तक था। ये मुख्तसर सा हयात थे जो मौला ने मुतअद्दिद बादशाहों को देखे हैं। जब हश्शाम 9 साल मौला के ऊपर जायजा लेने के लिए 105 हिजरी से 114 हिजरी तक हश्शाम ने मौला के ऊपर जायजा लेते रहा। 114 हिजरी में जीन को जहर में आलूद करके सवारी पे रख के, सवारी पे बिठा के मौला को भेजा। उसके सबब से मौला शहीद हो गए, मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम। तो जब इनको जलील करने के लिए दरबार में बुलाया गया, हश्शाम बिन अब्दुल मलिक ने मौला मोहम्मद बाक़िर इस्लाम को जलील करने के लिए बुला भेजा। तो मौला गए, जाके देखते हैं कि तीर अंदाजी का मेला लगा हुआ है दरबार में, सब तीर अंदाज कर रहे हैं। मौला ने देखा ये माजरा, अंदर दरबार में गए। हश्शाम बिन मलिक से कहा, हश्शाम मुझे क्यों बुलाया है? तो मैं आप तीर अंदाजी करना होगा, ये वक्त नहीं है तीर अंदाजी का हश्शाम, मैं नहीं करूंगा। तो एक मरतबा इमाम को जलाल आने के लिए एक बात कही हश्शाम बिन इब्न अब्दुल मलिक मलून ने कि दावे तो बहुत कुछ करते हैं आप, जौहर नहीं दिखाते। तो एक मरतबा इमाम को जलाल आया, आके वो तीरों का दस्ता लिया जिसमें 9 तीर थे। एक मरतबा तीर को लेकर कमान में रखकर वो टारगेट जो तीरों का था हश्शाम के सामने दूर पे जो 9 तीरों का फासला आ रहा था, वहां से खड़के, बादशाह के बाजू से खड़के कमान में रखकर तीरों को छोड़ा। तीर टारगेट में बैठा, वो तीर के पुष्प पे दूसरे तीर को मारा, उसके पुष्प पे तीसरे तीर को मारा, 9 तीरों को मारा। 9वां तीर का पुष्प आके हश्शाम बिन अब्दुल मलिक के नाक को लग गया। एक बंदा परेशान हो गया, ये क्या हुनर है, ये क्या फजीलत है, ये क्या माजरा है, ये क्या जौहर है आपका? दरबार गुल मच गया, इमाम के पैरों पर गिरने लगे। ये हाल देखकर इमाम को रुखसत करने के लिए कहा हश्शाम ने। इमाम रुखसत करके बाहर आए। थोड़ा रास्ते में जाने के बाद देखते हैं कि हुजूम है ईसाइयों का, खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा मौला ने, ये कई का हुजूम है? लोगों ने कहा, आज ईसाइयों का राहिब अपने जागर से, जिसे घर कहते हैं, अपने जागर से साल में एक मरतबा बाहर आएगा। उसके ज़ियारत के लिए, उससे सवाल करने के लिए, उससे दुआ लेने के लोग लाखों के तादाद में खड़े हुए हैं। मौला ने भी खलबे हुजूम में जाकर रुक गए। एक मरतबा जागर से बाहर निकला राहिब ईसाइयों के आलम ने, एक मरतबा नजर की पूरे मजमे पर करके अपनी नजर एक जगह रुकाया तो देखा एक नूर सा चेहरा दिख रहा है, नूर साते हो रहा है उस चेहरे से। एक मरतबा आलिम ने ईसाइयों के मौला से कहा था, आप तशरीफ लाइए। मौला ने कहा, नहीं, मैं लोगों में नहीं रहूंगा, तो जो कुछ कहना चाहता है कह। तो सवाल मैं करूं या आप करेंगे? ईसाइयों के आलम ने कहा। तो मौला ने कहा, पहले तू कर, मैं इसका जवाब दूंगा। तो ईसाइयों के आलम राहिब ने कहा, ये बताइए कि सवाल मैं करता हूं, मैं समझता हूं आप नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे सवाल है जो आप ही के अकीदे में, आप ही के किताबों में नजर आती हैं।
तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, राहिब पूछ जो कुछ पूछना चाहता है। तो पूछता है वो कौन सा वक्त है जो न दिन में शुमार है न रात में शुमार है। मौला मुस्कुरा के कहते हैं वो तुलुए फजर का वक्त से लेकर तुलुए आफ्ताब तक का वक्त है, जो ना दिन में आता है जो ना रात में आता है, जिसे सात बहिश्त कहते हैं। उस वक्त परवरदिगार आलम ने गमज़दों को, दर्दमंदों को, बीमारों को शफा अता करता है, सुकून अता करता है। उस वक्त वो सो जाते हैं सुकून से। तो फिर दूसरा सवाल किया राहिब ने, आपका अकीदा यह है कि अहले बश्त गज़ा इस्तेमाल करते हैं मगर कुछ भी खारिज नहीं होता, ये दुनिया की मिसाल बताइए। कि मौला मुस्कुरा के कहते हैं शिकम में मादर है, शिकम में मादर में बच्चा जब माँ से जो कुछ हासिल करता है, जो माँ खाती है, वो फिल्टर होकर बच्चे के शिकम में जाता है, मगर बच्चे के यहां से कुछ खारिज नहीं होता। शिकम में मादर दुनिया की मिसाल है। राहिब चुप हो गया। राहिब तीसरा सवाल करता है, बहिश्त में सारी गज़ाएं इस्तेमाल होती है मगर कम नहीं होती, मगर खत्म नहीं होती, इसकी मिसाल दुनिया में क्या है? मौला मुस्कुरा के कहते हैं, आए राहिब सुन, शम्मा है दुनिया में इसकी मिसाल। जो शम्मा जलता है उसे 1, 2 या 1000 लाख शम्मे उससे जला तो पहले शम्मे का रोशनी नूर कम नहीं होगा। यही है, यह खत्म नहीं होगा ना कम होगा, यही दुनिया की मिसाल है। फिर राहिब पूछता है, बहिश्त में हर चीज ताज़ा होती है, इसकी दुनिया में मिसाल क्या है? मौला मुस्कुरा के कहते हैं, दुनिया में मिसाल मिट्टी और पानी है। जो मिट्टी कभी बासी नहीं होती, तरोताज़ा रहती है। पानी ना कुएं में, ना नहर में, ना दरिया में बासी नहीं होती, तरोताज़ा रहती है। ये दुनिया की मिसाल है। फिर राहिब पूछता है, वो कौन दो भाई है, एक वक्त में पैदा हुए, एक वक्त में इंतकाल कर गए, मगर दोनों का सिन में फासला 100 साल का था। मौला मुस्कुरा के कहते हैं, क्या तू कुरान सूरह बकरा देखा नहीं? तूने कहा था कि आपके किताबों में मैंने देखा है। सूरह बकरा में 54 और 55 में आयत में यह नहीं देखा कि उज़ैर जब बैतुल मुक़द्दस से गुजर रहे थे अपने सवारी के साथ, एक मरतबा बख्तुन नसर या दूसरी रिवायत में नजतुन नसर नामी बादशाह आके बैतुल मुक़द्दस को जला दिया, पूरा मिस्मार कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, पूरा तबाह तारात कर दिया। उस वक्त एक मरतबा उज़ैर बैठ गए, बैठ के सवारी को छोड़ दिया, जो दूध लाए साथ उनका था, दूध पीने के लिए दूध को उठाया और खाना खोला, जो खाना था ताज़ा था। तो खाने खोलते खोलते दिमाग में ख्याल आया, परवरदिगार क्या ऐसा शहर भी फिर आबाद हो सकता है, इसी बस्ती भी फिर आबाद हो सकती है? एक मरतबा इजराइल को हुक्म हुआ, इजराइल जाओ उज़ैर को रूह ख़ब्ज़ कर लो। उज़ैर का सिन उस वक्त 30 साल का था। उज़ैर इंतकाल कर गए। उज़ैर के भाई अजीज का सिन भी 30 साल का था। एक मरतबा 100 साल के बाद परवरदिगार आलम ने हुक्म इलाही से जनाब उज़ैर को उठाया के कहता है, उज़ैर तुम कितनी देर तक सोते रहे? तो उज़ैर ने जवाब दिया, परवरदिगार मैंने तो एक आधा दिन या एक दिन सोया हुआ समझता हूं। परवरदिगार ने कहा, आवाज आई परवरदिगार के हाथ से, अरे उज़ैर तुमने 100 साल इंतकाल कर चुके थे, 100 साल की मुद्दत हो चुकी है। अब तुम्हारा सिन 20 ही यानी 30 ही है, जिस सिन में तुम इरादा करे थे। क्या परवरदिगार इस बस्ती भी आबाद हो सकी? देखो बैतुल मुक़द्दस आबाद हो गया है। जो बैतुल मुक़द्दस को बख्तुन नसर जला दिया था, वो बैतुल मुक़द्दस को फिर से तामीर किया गया है। एक मरतबा उज़ैर सजदे में गिर गए और उज़ैर को फिर हुक्म आया, उज़ैर देखो तुम्हारा दूध जो तुम लाए थे तरोताज़ा है, तुम्हारे सामने जो गज़ा है तरोताज़ा है, तुम्हारा सवारी गल गई है, हड्डियों के ढेर पड़ी हुई हैं। एक मरतबा परवरदिगार जैसे बच्ची को किया था, मेरे सवारी को भी कर दिया दुआ की, तो हड्डियां जमा होने लगी, उसके ऊपर गोश्त आने लगा, सवारी तैयार हो गई। उज़ैर उसका सवारी पे बैठ के घर को गए तो उनके पोते खुद बूढ़े हो चुके थे। उनके भाई अजीज जो 130 साल के हो चुके थे। उज़ैर का सिन 30 साल था, उनका सिन 130 साल था। उसके बाद 20 साल दोनों भी जिए। 150 साल के वक्त में फिर दोनों का इंतकाल हुआ, जो जुड़वा भाई थे। मौला ने मुस्कुराते हुए राहिब को कहा, तो राहिब ने पैरों पे गिर दिया उतने लाखों के इंसानों के सामने कि मैं आलिम ईसाइयत का नहीं, आलिम ईसाइयों का नहीं हूं, मैं इनका
शागिर्द हूं, मैं इनका गुलाम हूं, तुम भी इनके ऊपर ईमान लाओ, इस्लाम के ऊपर लाओ ईमान। इस्लाम ऐसी फैली है, इस्लाम तलवारों से नहीं फैली, इस्लाम हमारे मौलाओं के, हमारे इमामों के, हमारे रसूल के वसीयत से, किरदार से फैली है, कमालात से फैली है, फजीलतों से फैली है। यह गलत फहमी है कि दुनिया का कि इस्लाम तलवार से फैली है, नहीं, राहब पैरों पे गिर गया। फिर इमाम अलैहिस्सलाम के पास ताऊस यमानी, जो दुनिया इस्लाम का मशहूर शख्सियत था, वो आके मौला से पूछता है, मौला मुझे ये बताइए, चंद चीज़ों को मैं जानना चाहता हूं, लिहाजा आपके यहां आया हूं, बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसका थोड़ा हलाल ज्यादा हराम है। तो मौला मोहम्मद बाक़र साहब मुस्कुरा फरमाया, आई ताऊस यमानी, नहर तालूत का किस्सा तो नहीं सुना, सूरह बकरा में है जिसका जिक्र, जो तालूत जालूत को मारने के लिए जो जालिम बादशाह था, लश्कर को लेके निकले, पानी हो गया तो लोगों ने पानी के शिद्दत से मरने के करीब थे, तो तालूत से शिकवा किया, या तालूत तुम्हारे साथ आए हैं, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिल रहा है, प्यास से मर जाएंगे। तो एक मरतबा तालूत ने कहा, वहां पे नहर आने वाली है, जाओ वो नहर से चुल्लू सा पानी ही पीना, चुल्लू से ज्यादा पानी पिएगा वो मुझसे नहीं होगा, जो चुल्लू का पानी पिएगा, चुल्लू ही का पानी पिएगा, वही मेरा होगा। 313 इंसान चुल्लू का पानी लिए, काम के बाकी के तादाद, लाखों का तादाद पूरा पानी पी गए, जिसके होठ सियाह हो गए थे, जिसके नतीजे से वो जालूत से लड़ने के लिए दूर हो गए। लिहाजा तालूत और जालूत का हिस्सा है जो कुरान में परवरदिगार आलम ने नहर तालूत कहते हैं, तालूत के पानी का हिस्सा है, जो थोड़ा पीना हलाल है, ज्यादा पीना हराम है। फिर ताऊस यमानी कहते हैं, वो कौन सा रोजा था जिनमें सिर्फ बात करना मना था, खाना पीना जायज था। मौला ने मुस्कुरा के कहते हैं, वो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का रोजा था, जो खाते पीते थे मगर बात करने के लिए मना किया गया था, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम से लोग सवाल कर सकें, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदात को जान सके, ईसा अलैहिस्सलाम के नबूवत को मान सकें। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जनाब मरियम को यह हुक्म दिया था कि तुम सिर्फ बात ना करने का रोजा रखना। फिर ताऊ से यमानी पूछते हैं कि मौला ये बताइए कि वो कौन सी शय है जो कम होती है ना ज्यादा होती है। तो मौला फरमाते हैं, उम्र है इंसानों का, कम होता है मगर ज्यादा नहीं होती। इंसान समझता है मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, नहीं, वो मौत के करीब जा रहा है, एक एक दिन उसका घटते जा रहा है। ये नहीं समझता कि खुदा की तरफ नहीं आता, वो खसारे में रहेगा। इंसान की उम्र है जो बढ़ेगी नहीं, घटते जाएगी, कम होते जाएगी। फिर ताऊ से हमारी पूछते हैं, मौला वो कौन सी शय है जिसमें इजाफा होता है, कमी नहीं होती। मौला फरमाते हैं, वो समंदर है, कभी हर वक्त इजाफा होता है, उसमें कमी नहीं होती। फिर ताऊ से हमारी पूछते हैं, मौला वो कौन सा उड़ने वाला चीज है जो सिर्फ एक दफा उड़ा। तो मौला मुस्कुरा के कहते हैं, वो कोहे तूर है, बनी इसराइल के ऊपर अजाब देने की खातिर, डराने की खातिर परवरदिगार आलम ने कोहे तूर को उनके सरों पर आकर रख दिया। वो डर के भाग गए, चंद ईमान लाए, चंद भाग गए। वो लिहाजा वो एक ही मरतबा कोहे तूर उड़ा था, उसी वक्त कायम मुकीम हो गया था। फिर ताऊ से यमानी पूछते हैं, मौला वो कौन से लोग हैं जो बात सच्ची है मगर परवरदिगार उनको झूठा कहता है। मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मुनाफिकीन हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह है, यानी दिल में अलग ईमान रखते हैं, जबान पे कहते हैं रसूल पैगंबर हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मगर उनका इरादा, उनकी नीयत यहूदी नसारा है, लिहाजा वो मुनाफिक है। तो मरतबा ताऊ से यमानी सर तस्लीम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने रख दिए। और हश्शाम के ज़माने में जिसने शहीद किया इमाम को, वो हश्शाम का ज़माना जब आया, ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम से हश्शाम ने दरबार में बुला के पूछता है, क्योंकि हश्शाम के ज़माने में इराक से, शाम से जो हज को लिए आते थे उनको पानी नहीं मिल रहा था रास्ते में,
तो लोगों ने शिकवा किया, अरे बादशाह हशाम हमें पानी से तड़प रहे हैं, तो बैठा हुआ देख रहा है। तो तमाम लोगों को बुलाया, जोग्राफिया लोगों को बुलाया, आलिमों को बुलाया, तमाम लोगों मुहर्रिखीन को बुलाया, कोई भी इसका हल बताने से आजिज हो गए। तो मजबूर होकर फिर इमाम के आस्थाने पर चौखट पर सर झुकाकर आया और कहा, मौला इसका हल कीजिए। मौला ने कहा, क्या माजरा हुआ है? तो हशाम ने कहता है, जहां पर मैं भेजता हूं उस जगह पर जहां पानी निकलने के इम्कानात है, वहां से गर्म हवा आती है, वो मजदूर मरते चले जा रहे हैं। ये अज़ाब परवरदिगार का नाज़िल हो रहा है। मरतबा मौला ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, तख्त खिलाफत जो गसब से छीनता है, उनके साथ भी परवरदिगार आलम इसी तरीक़े का अज़ाब नाजिल करता है। एक मरतबा गज़ब हो गया, मगर मसला हल करना है, लिहाजा हशाम चुप रहे कि मौला इसका हल, मसले को हल कीजिए। तो मौला फरमाते हैं, थोड़े दूर के बाद जाके कुआं खोदिए, वहां पे पानी आएगा। हशाम पूछता है, वहां पे क्यों आग का गर्म हवा, जिसे कुरान में रीह अजीम कह के पुकारा गया है, क्यों आती है? तो अरे हशाम, वहां पे सूरह अहक़ाफ़ जो 46वां सूरा है कुरान में, उसमें इसका जिक्र है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। कौम आद को परवरदिगार आलम ने हूद के ज़रिए से हिदायत कराया तो वे ना मानने लगे। तो परवरदिगार आलम 7 साल उनको पानी से मायूस कर दिया, कहर आ गया। और जब भी नहीं माने तो परवरदिगार आलम ने एक अबर को उनके सरों पर लाया। वो समझे कि पानी का अबर है, जाके अबर के नीचे खड़े, तो वो अबर से अंगारों के चिंगारियां लगने लगे, वो जमीन में धस के मर गए। वो अंगारियों का चिंगार का असर आज तक है। वैसा ही जो आदम से लेकर खातम से लेकर क़यामत तक जो अल्लाह की और रसूल की और उल अज़म की इताअत नहीं करेगा, वो अंगार के चिंगारियों में इसी तरीके से धस जाएगा, झलस जाएगा। इमाम फरमाते हैं 7 दिन ये कौम आद उस झलस में हवे में उड़ते उड़ते जमीन में धस गए, झलस रीह अजीम में झलस हो गए। तो इसमें मौला फरमाते हैं, इसमें 4 चीजें मैं बताना चाहता हूं। इल्म व इस्मत को छोड़े तो हमेशा ज़लील रहोगे। फिर मौला फरमाते हैं, जो हस्बुना किताबुल्लाह काफी समझता है, इतरत भी लाजिम है, ये समझाना चाहता हूं। और मौला फरमाते हैं, हाजियों को पानी पिलाना आले मोहम्मद का मनसब है, ये जालिम बादशाहों का मनसब नहीं है। चौथा मंतिक में बताना चाहता हूं, साकी का मनसब साक़े कौसर का तरका है, आले मोहम्मद का है, उलाए का असहाब नार का यानी मीरास नहीं है। ये मौला बताएं। तो हशाम एक मरतबा आग बबोला हो गया। आग बबोला हो के मौला को हर तरीके से शहीद करने का इरादा कर लिया, करके मौला के सवारी के ऊपर जो जीन था उसमें जहर से आलूदा कर दिया और जीन को मौला के सवारी पर रख दिया। मौला जाके उस सवारी पर बैठते बैठते जीन को देखा, जहर आलूदा है। मर्तबा कहते हैं, परवरदिगार तेरा मंशा यही है तो मैं इस पर बैठ जाऊंगा। मर्तबा इमाम बैठ गए, आए और आखिरी वक्त आके अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने बेटे जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बेटा जाफर सादिक, कल रात मैंने मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। आके कहते हैं, बेटा मोहम्मद बाक़िर, कल तुम हमारे करीब आ जाओगे, आज रात ही तुम्हारी आखिरी रात है बेटा। एक बोलता है जाफर सादिक घबराए गए, बाबा क्या ये आखिरी दिन है आपका? तो मौला फरमाते हैं, आखिरी दिन है बेटा जाफर सादिक, मैं वहां पे माल रखा हुआ हूं, उस माल में से कुछ हिस्सा हज के वक्त मिना में 10 दिन मेरे मजलिसें बर्पा करना, शोहदा के मजलिसें बर्पा करना, मेरे जद्द अमजद इमाम हुसैन इस्लाम के मजलिस बर्पा करना, ताकि हाजी लोग समझ जाएं कि किसका मातम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने जुल्म किया है, ताकि वो ईमान ला सके, वो हिदायत पा सके। तो मौला कुर्बान है आप पर कि हज में भी मजलिसें करने के लिए कहा है। और जनाब सैयद साजिन आपके वालिद बुजुर्गवार 40 साल अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन इस्लाम को रोते रहे। इमाम हुसैन इस्लाम भी वसीयत करते रहे
کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، یہ ہدایت کرنا کہ مجھے کیسا ذلیل ہو، تیرے خضر بے خضر کر کے مجھے مارا گیا تھا، مجھے نہ کھانا نہ پانی دیا گیا تھا، میرے بچوں کو، میرے اہل حرم کو 3 دن کے بھوکے پاسے، اور تمام لوگوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، اور امام جناب خود سید النساء العالمین فرماتے ہیں بابا میرے حسین پہ رونے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ تو جناب حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ پروردگار قوم کو پیدا کرے گا، وہ تیرے حسین کے اوپر روئے گا، ان کے بچے ان کے بچوں پہ روئیں گے، ان کے اصحاب پہ روئیں گے، ان کی عورتیں ان کے عورتوں پہ روئیں گے۔ تو امام جناب سیدہ فرماتی ہے بابا میں جانتی ہوں، کیونکہ جب میری نواسی سید زینب و کلثوم رونے کے لیے جب آنسو نکالتے ہیں تو ان کے اوپر کوڑے پڑیں گے، میں جانتی ہوں بابا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، حلق میں خاردار خوف سے سید سعدی سفر کرتے کرتے بابا کے چہرے میں دیکھ کے آنسو آئے گا تو اس کی اذیت دی جائے گی کوڑوں سے۔ اور جب میری پوتی سکینہ خیر خانے میں بھی بابا کی گریا کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اور اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس خلیل کو سامعین سے قبول فرما، بانیان مجلس سے قبول فرما، تمام محبان اہل بیت کو تیرے دامن میں رکھ، اس بیماری سے اس بلا سے بچا لے، ہماری دلی مرادیں سب محبان اہل بیت کے دلی مرادوں کو بتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ان اللہ لا یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل